Good morning, students. Today we will learn is access specifiers. Access specifiers होते क्या हैं? तो accessing a member of a class depends a lot on access levels or access specifiers. These are also called access modifiers. Access specifiers control access to members of a class from within a Java program. The access levels or access specifiers supported by Java are private, protected, public, and default. Depending upon the access level of a member of a class, access to it's denied or allowed. आपने देखा है जब भी हम क्लास बनाते हैं तो we use the keyword public. Okay, so public is there. Access specifier. Another access specifiers are private, protected, and default. Okay, तो इसको समझने से पहले हम एक रियल लाइफ का एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि ये होता क्या है. Suppose there is a family of some people, say namely A, B, C, D, etc. Every person in the family has a unique talent. For example, A can sing in dual voice, B can bring out instrumental voices from his throat, etc. etc. These talents can be thought of as equivalent to private members. Okay? For example, if someone wants to access the talent of A, that is private member of A, then he or she has to make a request, that is called a method to show talent to A, and so on. The members of this family have some jewelry. For example, each one has a specific jewelry. For example, A has a necklace, B has a bracelet, and so on. These jewelry items can be used by the family members, their children and grandchildren, but not by an outsider. These jewelry items are equivalent to protected members as these are shareable by the members and their children subclasses. All the family members can use one another's jewelry items, but no outsider can use it. This is equivalent to package access as all members of same family can access that item. Each members consider next scenario. Each member owns a tree as well, which can be used by any, that is by family members, their children, outsiders, etc. This is equivalent to public access as anyone, whether member or non-member, can use it. Okay, अब हम देखते हैं जावा में कि कैसे इनको यूज किया जाता है. First is your default access specifier. If we do not explicitly specify any access specifier, means private, public, protected. Okay, then by default the default access modifier is considered. Now let us see example. Package, default package. Okay, default package is the package name. Class logger. See, क्लास लॉगर के पहले आपने कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिखा है. ये जो ऊपर आपने लिखा है डिफॉल्ट पैकेज इज द नेम ऑफ द पैकेज इन विच क्लास इज डिफाइंड. ओके, नाउ क्लास लॉगर, देन देयर इज अ मेथड मैसेज. इसके अंदर आपने एक लाइन प्रिंट करवाई है, दिस इज अ मैसेज. अब यहाँ क्या होगा, हियर the logger class means the name of this class is logger. So the logger class has the default access modifier and the class is visible to all the classes that belong to the default package. Okay, however, if we try to use the logger class in another class outside of the default package, we will get a compilation error. यहाँ हमने क्लास जो बनाई है लॉगर क्लास, उसके आगे आपने एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ नहीं किया है. मीन्स आपने पब्लिक नहीं लिखा है, प्राइवेट नहीं लिखा है, प्रोटेक्टेड नहीं लिखा है. तो क्या होगा, यहाँ डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर कॉल होगा और इसके अंदर क्या होगा, वो सभी क्लासेस जो कि डिफ़ॉल्ट पैकेज के अंदर आती हैं वहाँ पर इसको एक्सेस हम कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन अगर हम डिफ़ॉल्ट पैकेज के अलावा किसी पैकेज के अंदर, किसी क्लास के अंदर इस लॉगर क्लास को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो देन वी विल गेट अ कंपाइलेशन error. Okay,
Next is private access specifier. When variables and methods are declared private, they cannot be accessed outside of the class. Okay? जैसा कि हमने अभी एग्जाम्पल में देखा था कि suppose A can sing in dual voice. Okay, so if we want to access the talent of A, then we have to make a request. Okay, तो यहाँ पे क्या होगा, लेकिन हम उसका ले नहीं सकते, एक्सेस नहीं कर सकते उसको, लेकिन हम उससे रिक्वेस्ट करके उसको उसके टैलेंट को देख सकते हैं. सो यहाँ पर प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर जो है, व्हेन वेरिएबल्स एंड मेथड्स आर डिक्लेयर्ड प्राइवेट, दे कैन नॉट बी एक्सेस्ड आउटसाइड ऑफ द क्लास. ओके, लेट अस सी हियर. क्लास डेटा, डेटा क्लास, डेटा इज अ क्लास. उसके अंदर एक वेरिएबल आपने लिया है स्ट्रिंग, नेम लिया है जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, और उसके आगे एक्सेस स्पेसिफायर लगा दिया है प्राइवेट. ओके, सो नेम इज अ वेरिएबल, किस टाइप का है, प्राइवेट वेरिएबल है ये. अब यहाँ नीचे मेन क्लास देखो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, आपका ये मेन मेथड स्टार्ट हुआ. यहाँ आपने डेटा क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया डी. ओके, उसके बाद डी डॉट नेम, मतलब आपने उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उस नेम को एक्सेस किया और स्कूल असाइन किया, वैल्यू डाली. लेकिन अब एक्सेस मेंबर, प्राइवेट मेंबर्स को हम आगे एक्सेस कर ही नहीं सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, हमको एक एरर मिलेगी. इन द अबव एग्जाम्पल वी हैव डिक्लेयर्ड अ प्राइवेट वेरिएबल नेम्ड नेम and a private method named display. When we run the program, we will get the error. ये अभी हमने डिस्प्ले मेथड यहाँ नहीं बनाया, जब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो मैं आपको वो बना के बताऊंगी. अभी हमने यहाँ क्या लिखा है, यहाँ हमने एक नेम वेरिएबल लिया है, और इसका यहाँ हमने जो मेथड लिया है वो आपने अभी हमने उसको नहीं बनाया. यहाँ पे जस्ट हमने एक वेरिएबल लिया है, तो जब हम उस मेथड को यहाँ एक्सेस करने की वेरिएबल लिया है हमने यहाँ पर नेम, और जब हम इसको हमारी मेन क्लास के मेन प्रोग्राम के अंदर एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो वी विल गेट एन एरर. क्यों एरर मिलेगा हमको, क्योंकि प्राइवेट मेंबर्स को हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं आउटसाइड ऑफ द क्लास. ओके, नेक्स्ट इज योर प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर. When methods and data members are declared protected, we can access them within the same package as well as from subclasses. For example, here is a class animal. इसके अंदर हमने एक मेथड लिया है display, जो किस टाइप का है, प्रोटेक्टेड है. उसके अंदर हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट किया है कि ओके. देन हमने एक आगे डॉग क्लास ली है जो कि एक्सटेंड करती है किसको, एनिमल क्लास को. अब यहाँ पर जो आपने डॉग क्लास के अंदर मेन मेथड आ रहा है आपका, यहाँ पे आपने डॉग ऊपर देखो, ये जो है आपने यहाँ क्या बनाया, अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया किसका, डॉग क्लास का. ओके, अब इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, डॉग डॉट डिस्प्ले को कॉल कर रहे हैं. डिस्प्ले किसके अंदर है, एनिमल क्लास के अंदर है, तो एनिमल क्लास यहाँ पे एक्सटेंड हो रही है. ओके, इसलिए हम इसको इसके थ्रू कॉल कर रहे हैं. तो ये होता है प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर. व्हेन मेथड्स एंड डेटा मेंबर्स आर डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड, वी कैन एक्सेस देम विद इन द सेम पैकेज एज वेल एज फ्रॉम सब क्लासेस. ओके, तो ये उसकी क्या हो गई आपकी, एनिमल जो है, ये डॉग क्लास किसको एक्सटेंड कर रही है, एनिमल क्लास को. ओके, तो ये क्लास किससे डिराइव हो रही है, एनिमल क्लास से. तो यहाँ पर प्रोटेक्टेड यूज़ किया जा सकता है, लेकिन अगर प्राइवेट होगा तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते. Next is your public access specifier. When methods, variables, classes and are declared as public, then we can access them from anywhere. The public access modifier has no scope restriction. For example, एक क्लास बनाई है आपने, पब्लिक क्लास एनिमल, इसके अंदर आपने एक वेरिएबल लिया है लेग काउंट, और एक मेथड लिया है डिस्प्ले. इसके अंदर आपने दो स्टेटमेंट्स प्रिंट करवाए हैं. अब जब हम मेन मेथड से एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसका, एनिमल क्लास का, तो जब आप एनिमल डॉट लेग काउंट के अंदर क्या वैल्यू डाल रहे हो, 4, तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ जो लेग काउंट वेरिएबल किसके अंदर है, एनिमल, उसको एक्सेस कर सकते हैं. क्यों, क्योंकि ये क्या है, आपका पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है. और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर